Hello, my dear student of class 12. Today's topic is chapter number 11, biotechnology and their principle and process. In this, we are studying about the different modes of biotechnology. So, let us next topic is insertional inactivation. That is part of the cloning vector category, and which is used for the ensuring the screening of the this DNA fragment. So let us consider their simple definition of this insertional inactivation by word. And this is most efficient method of screening. This is most efficient method of screening for the presence of recombinant plasmid. Is based on the principle that the cloned DNA fragment disrupts the coding sequence of a gene. This term is insertional inactivation. Once more, this is most efficient method of screening for the presence of recombinant plasmid, and that is based on the principle that clone the DNA fragment that disrupt the coding sequence of a gene. यह क्या है? मोस्ट एफिशिएंट, बहुत उपयोगी मेथड है किसके लिए? स्क्रीनिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. क्या करता है? स्क्रीनिंग करता है किसका? प्लाज्मिड का, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का, और जो कि बेस्ड है किसके ऊपर? प्रिंसिपल. किस प्रिंसिपल के ऊपर? दैट द क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट डिस्टर्ब, जो कि क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट को डिस्टर्ब करेगा किसके द्वारा? द कोडिंग ऑफ देयर सीक्वेंस ऑफ जीन, अपने जीन के सीक्वेंस के द्वारा. इस टर्म को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोनिंग वेक्टर में. इंसर्शनल एक्टिवेशन में सबसे पहले वहां पे कि किसका? प्लाज्मिड का स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रेगमेंट का जीन का सीक्वेंस मिले और उसमें आइडेंटिफाई करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड किया जाए, जिससे जो प्रोसेस है क्लोनिंग वेक्टर का वो कंप्लीट हो. My dear student, we are studying insertional inactivation process, how this takes. Here there is story and also example of the insertional inactivation in the vector cloning or cloning vectors. So let us one by one we read this one. This is powerful method of screening for presence of recombinant plasmid is referred to as blue white selection. ये क्या है? पावरफुल मेथड है किसका? स्क्रीनिंग का, जो कि प्रेजेंस किसका बताता है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का. किसके थ्रू? ब्लू व्हाइट सिलेक्शन के थ्रू. इसने ब्लू कलर और व्हाइट कलर के सिलेक्शन के थ्रू बताता है क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन द प्लाज्मिड डीएनए recombinant plasmid. So once again, this is powerful method of screening for presence of recombinant plasmid, and this is referred as blue white selection. Next, this method is based upon the insertional inactivation of the LAG-Z gene. ये मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका? LAG-Z जीन का. एंड present on the vector, that present on the vector. This method based upon insertional activation of the LAG-Z gene that present on the vector. यह मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का. किसके? LAG-Z जीन के, जो कि प्रेजेंट है किसके ऊपर? वेक्टर के रूप में. Further, the LAG-Z gene
encodes the enzyme बीटा गैलेक्टोसिडेज। उसके बाद क्या करेगा, ये जो लैक्जेट जीन एंजाइम है वो किसको इनकोड्स करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को, दैट which can cleave the chromogenic substrate into a blue colored product, जो कि क्या करेगा, क्लीव मींस तोड़ना, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की जो इसके क्रोमोजोमिक सबस्टेंस है किसके, बीटा गैलेक्टोसिड के, किस कलर में, ब्लू कलर के प्रोडक्ट में। एंड इफ दिस लैक्जेट जीन इज इनएक्टिवेटेड बाय इंसर्शन ऑफ टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट इनटू इट, जब यह लैक्जेट जीन इनएक्टिवेट होगा किसके द्वारा, इंसर्शन ऑफ टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट के द्वारा, किसके अंदर, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू कलर विल बी प्रिवेंटेड एंड इट गिव्स वाइट कलर कॉलोनी, एंड बाय दिस वे we can differentiate recombinant and non-recombinant colony as white and blue color. Once again, this is insertional activation inactivation. This is the powerful method of screening of presence of recombinant plasmid, that is referred to as blue-white insertion or selection. This method is based on insertional inactivation of the lactate gene that present on the vector. Lactate gene encodes the enzyme beta galactosidase, which can cleave the chromogenic substrate into a blue colored product. If this lactate gene inactivated by insertion of a target DNA fragment into it, the development of blue color will be prevented and it gives white colored colony. By this way we can differentiate recombinant and non-recombinant colonies in the form of recombinant in white color and non-recombinant in the blue color. So this is example of insertional activation, that is powerful method of screening of recombinant plasmid that present on the vector. My dear student, in the cloning vector we are studying about ORI, that is origin of replication first, then selectable marker, after that cloning site. 3 already we learned in the previous video. Today 4th point, vector for cloning genes in the plants and animal. Vector for cloning genes in the plant and animal. इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐसा वेक्टर जो कि क्लोनिंग करता है किसके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए. So here one example, Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens is pathogen of dicot plant. ये क्या है, पैथोजन है किसका, dicot plant का. This have able to deliver of a piece of DNA. इसके पास एक क्या क्षमता होती है, डिलीवरिंग द पीस ऑफ डीएनए. इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन जो कि पैथोजन है किसका, डाइकाट प्लांट का, इसके पास एबिलिटी क्या है, डिलीवर करता है कि डीएनए के पीस को, दैट इज नोन एज टीडीएनए, पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए, दैट यूज्ड फॉर टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ए ट्यूमर. ये जो टीडीएनए है इसका यूज किया जाता है टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट्स सेल इनटू ए ट्यूमर. इसका काम क्या है, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में चेंज कर देता है. एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल
required by the pathogen। जब ये ट्यूमर उसके बाद क्या करता है, ट्यूमर सेल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कौन सा, केमिकल प्रोडक्ट, जो कि किसके द्वारा रिक्वायरमेंट होती है, दिस पैथोजन कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इस बैक्टीरियम के द्वारा पैथोजन को जो नीड है केमिकल का, उसको कौन पूरा कर दे रहा है, जो पीस ऑफ डीएनए ट्रांसफर किया है नॉर्मल प्लांट को, किसमें, ट्यूमर में। वही ट्यूमर क्या करता है, ट्यूमर सेल प्रोड्यूस करता है एक केमिकल प्रोडक्ट, किसके लिए, पैथोजन के लिए। इन द रेट्रोवायरस in animals have the ability to transfer normal cell into cancerous cell। ये तो हो गई पैथोजन की बात। यहाँ अब रेट्रोवायरस में क्या है, एनिमल के पास क्षमता होती है क्या, कि वो ट्रांसफर कर देता है नॉर्मल सेल को, किसमें, कैंसरियस सेल में, कैंसरस सेल में। जो रेट्रोवायरस कंडीशन में एनिमल के पास क्षमता क्या होती है, कि वो नॉर्मल सेल को किसमें बदल देता है, कैंसरस सेल में। देन द ट्यूमर इंड्यूसिंग इंसल्ट फॉर्म इज कॉल्ड TI, T कैपिटल I, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर हैविंग नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट। जब यह रेट्रोवायरस कंडीशन में एनिमल के पास क्षमता क्या होती है, कि वो नॉर्मल प्लांट को कैंसरस प्लांट में ट्रांसफर कर देता है, तब ट्यूमर क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड ऑफ, ये TI प्लाज्मिड किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का मॉडिफाइड हो जाता है, किसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर के में, जिसके पास कोई पैथोजेनिक प्लांट, नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट, जो कि बहुत देर तक पैथोजेनिक फॉर्म में नहीं रहता, किसके लिए, प्लांट के लिए। सिमिलरली इसी तरह रेट्रोवायरस मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर फॉर द एनिमल। सेम कंडीशन में रेट्रोवायरस भी क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में बन जाता है, किसके लिए, एनिमल के लिए। दिस इज अबाउट वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन द प्लांट है। बहुत ही सिंपल है, हमने इसमें क्या आपको बताया, लिखा गया है पूरा, इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिकेंस क्या है, पैथोजन है, किसका, डाइकाट प्लांट का, जिसके पास क्षमता होती है क्या, डिलीवर करता है किसके, पीस ऑफ डीएनए को, जो वो क्या कहलाता है, दैट इज tDNA। ये tDNA क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है नॉर्मल प्लांट सेल को, किसके रूप में, ट्यूमर के रूप में। और यही ट्यूमर डायरेक्ट क्या करता है, केमिकल प्रोवाइड करता है, किसके लिए, पैथोजन के लिए। वो पैथोजन कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये तो यहाँ बात हो गई। लेकिन इन द रेट्रोवायरस कंडीशन एनिमल के पास क्षमता होती है क्या, दे हैव एबिलिटी, कि वो ट्रांसफर करता है नॉर्मल सेल को, किसके अंदर, कैंसरस सेल के अंदर। और यही बात जब ट्यूमर में आती है, जब ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड क्या करता है, TI प्लाज्मिड किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिकेंस का मॉडिफाइड हो जाता है, किसके रूप में, क्लोनिंग वेक्टर, जिसके पास दे हैव नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट, वो उसके पास क्षमता क्या होती है, वो पैथोजेनिक नहीं रह जाता, किसके लिए, प्लांट के लिए। इसी तरह से सिमिलरली रेट्रोवायरस मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर फॉर ए एनिमल। दिस इज ऑल अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स। फर्स्ट origin of replication, we learn about the origin of replication used for the replication of the DNA selectable marker that select the site for the binding of recombinant DNA. This cloning site is used for the cloning different types of the cloning vector, hint head, BAM, etc. E. coli, and this vector और क्लोनिंग जीन्स इन द प्लांट एंड एनिमल। ये वेक्टर क्या होता है, यूज होता है प्लांट और एनिमल के रूप लिए, किसके लिए, क्लोनिंग का, किसकी क्लोनिंग के लिए, डीएनए की। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी पार्ट, क्लोनिंग वेक्टर, एंड दैट इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग।
Hello my dear student, this is the last topic of tools of recombinant DNA technology, that is complement of the host, in which introduction of recombinant DNA into the host. How recombinant DNA introduced into the host? We know that DNA is the hydrophilic or a molecule that cannot go introduced simply into the any plasmid. So here is following 5 method. By that this DNA are introduced into the host by the different way. First, let us consider one by one by the simple chemical treatment transformation. In this introduction of recombinant DNA technology, DNA into the host only done by the transformation process. So this is not simple mechanic. Firstly, what happened? Simple chemical treatment with divalent calcium ion increase the efficiency of host cell through the cell wall pore to take up the DNA plasmids. बहुत ही सिंपल है. पहले क्या होता है? सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट होता है किसके द्वारा, किसके साथ? डाइवेलेंट कैल्शियम आयन का, जो कि इंक्रीज कर देता है इफिशियंसी किसका? होस्ट सेल का. किसके थ्रू? सेल वॉल के पोर के थ्रू, जो दैट किसके लिए? टेक अप ऑफ द डीएनए प्लाज्मिड. सबसे पहले सिंपल क्या है? सिंपली किसका ट्रीटमेंट हो जाता है? होस्ट का. किसके थ्रू? डाइवेलेंट कैल्शियम आयन के द्वारा, जो कि पावर बढ़ा देता है किसके? होस्ट सेल के, उसके सेल वॉल पोर को. किसके लिए? टू टेक अप द डीएनए प्लाज्मिड. बहुत ही सिंपल प्रोसेस. नेक्स्ट, recombinant DNA is transformed into the host cell by incubating both on ice at following 42 degrees Celsius or apply them in continuous that enable bacteria to take up the recombinant DNA. दूसरा प्रोसेस क्या है? recombinant DNA ट्रांसफर्ड होता है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर. किसके द्वारा? किस प्रोसेस के द्वारा? इंक्यूबेटिंग के द्वारा. इंक्यूबेटिंग क्या है? इंक्यूबेटिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच दैट host cell can be incubated for a particular temperature for within hour, 24 hours, 7 days or any constant temperature. incubating. फिर से देखेंगे. रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर. किसके प्रोसेस के द्वारा? इंक्यूबेशन के प्रोसेस के द्वारा. किसके? बोथ ऑन आइस. किसके द्वारा? होस्ट सेल और प्लाज्मिड. कितने टेम्परेचर पर? 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको इंक्यूबेट किया गया, फॉलोड भी किया गया थोड़े समय के लिए, और फिर उसी को उतने ही टेम्परेचर पर कंटिन्यू कर दिया जाता है. फिर दैट इनेबल, वो क्या कर देता है? इनेबल कर देता है टू टेक अप द, टू इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. फिर से देखेंगे. रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर. किस प्रोसेस के द्वारा? इंक्यूबेटिंग. कितने टेम्परेचर पर? 42 डिग्री सेल्सियस पर. फिर जब बैक्टीरिया के अंदर पावर हो जाता है, जब वह रखा जाता है इंक्यूबेशन प्रोसेस में, तो क्या कर लेता है? टेक कर लेता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. नेक्स्ट प्रोसेस, इन द माइक्रो इंजेक्शन मेथड. In the microinjection method, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the cell by using a glass micropipette. माइक्रो इंजेक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर. किसके? सेल के, होस्ट सेल के. किसके द्वारा? ग्लास का माइक्रोपिपेट होता है. माइक्रोपिपेट क्या होता है? पिपेट. आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो लेबोरेटरी में देखेंगे माइक्रोपिपेट ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका. इंजेक्शन की तरह स्ट्रक्चर होता है ऐसे. इसके अंदर यहाँ पे नॉब लगे रहते हैं और सेम इंजेक्शन की तरह होता है, और यहाँ पे नंबरिंग होती है उसके 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यमियम में ऐसे करके. तो जितना हमें जितने इंजेक्शन की जरूरत होगी उतने माइक्रोपिपेट की हेल्प से क्या करेंगे? उतना ही हम
रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेंगे जो कि होस्ट सेल में डालने योग्य होता है, इसलिए इसको बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। सो माइक्रोपिपेट इज जस्ट लाइक ए माइक्रो इंजेक्शन व्हिच इज यूज्ड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। नेक्स्ट लास्ट वन इज द बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, इसमें एक स्पेशल बायोलॉजिकल गन का यूज किया जाता है इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इज डेवलप्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय गन। ये जो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड है ये किसके लिए डेवलप किया गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। फिर इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन आर कोटेड विद डीएनए दैट इंटरेस्ट एंड बम्बर्ड इनटू द सेल। इस मेथड में क्या होता है? बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड में जो डीएनए है वो किसके द्वारा कोड किया जाता है? गोल्ड और टंगस्टन के द्वारा, और उसे अटैक करा जाएगा, इंसर्ट करा दिया जाता है। कैसे? जैसे हम लोग किसी मिसाइल को या बम को तोप की सहायता से इंजेक्ट कराते हैं। सो दिस इज बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड इन विच it is used for the introducing the recombinant DNA into the host. It is used as a microscopic particle of the gold and tungsten are coated on the recombinant DNA that bumbled into the cell. So next one is the last method. Disarm pathogen vectors, that is Agrobacterium tumefaciens, which allow to infect the cell and transfer the recombinant डीएनए इनटू द होस्ट। सबसे लास्ट में जो टेक्निक है वो है डिसआर्म पैथोजन, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेंस, जो कि अलाउ करता है क्या? इन्फेक्शन का सेल के अंदर और ट्रांसफर कर देता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, किसके अंदर? होस्ट के अंदर। दिस इज ऑल 5 टाइप्स टेक्निक्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, that is used in the biotechnology and for developing a useful things or material that used by the human being for their development and growth. So let us consider once more. This is companion host, introduction of recombinant DNA into the host, simple chemical method technique, recombinant transfer by the incubation method, in micro injection method, biologistic or gene gun method, and last one is the disarm pathogen method. So this is all about recombinant tools for the biotechnology.